Can you see the screen, please? Yes, sir. So you know that from the last few periods, we were discussing about the first chapter of the geometrical optics, and in the process of studying some concept related with the optical system, which is consisting of a lens or combination of the lenses on which the light is incident, refraction takes place, and image is formed. Object, image, lens, incident ray, refracted ray, all these things combinedly causes optical system. And this optical system, it is to be divided into the 6 different points, and this combination of the 6 different points which are present on the principal axis of the lens or optical system, it is called as what? Can you tell me, please? Cardinal points of the Cardinal points of a refracting system are the cardinal points of an optical system. So 6 cardinal points, 2 are the focal points we have seen, 2 are the principal points, their location or their status we have seen in the last period, and somewhat idea of the nodal points I have also given in the last period. So here today, once again, I will try to repeat the position of the nodal points by showing the another type of ray diagram, and then we will discuss the planes, and finally we come to the next article. Coming back to the nodal points. Now this is the refracting system. Are you agree with my statement that this is the refracting system? क्या आप इस बात पर एग्री हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्यों इसको मैं रिफ्रैक्टिव सिस्टम इस नाम से क्यों पुकार रहा हूं? अगरचे ये 2 लाइन दिख रहे खाली, लेकिन ये हकीकत में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेस है। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, एम करेक्ट? इधर कहीं तो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है, यानी कि ये ऑप्टिकल सिस्टम की रे डायग्राम है, याद रखिएगा। तो ऑप्टिक्स में हमको क्या उतारना पड़ता? Whenever we were discussing about a optical system, or whenever we were discussing about image formation system, we have to draw a ray diagram. So in the ray diagram, you can see that this is the optical system. 2 principal points and 2 focal points we have already discussed. Now here I am concentrating on the nodal points. एक बार सुन लीजिए nodal points क्या है? Nodal points are defined as, सुन लीजिए very carefully, pair of conjugate points. Pair of conjugate, conjugate समझता ना? एक साइड में ये है तो दूसरे साइड में जो उसका एक पॉजिटिव साइड में तो एक दूसरे की मिरर इमेज रहती हो। तो nodal points are defined as pairs, जोड़ी, pair of conjugate points on the axis of the lens या on the axis of the system of lens which have unit positive angular magnification. यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन किसको बोलते? थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपकी समझ में आएगा जब हम मैथमेटिकली इसको देखेंगे। फिलहाल इतना समझ जाइए कि नोडल पॉइंट्स 2 पॉइंट्स का मजमुआ है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कॉन्जुगेट है, और ये रहते कहाँ है? इनका लोकेशन, इनकी जगह कहीं? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये पॉइंट्स मिलते कब हैं? कब इन पर जो है तो नोडल पॉइंट्स का जो है जन्म होगा, फोकल पॉइंट का जन्म होगा, या प्रिंसिपल पॉइंट दिखेंगे कब? घर में बैठे बैठे कहां पर दिखते ये पॉइंट्स? इनका देखना कब हमारे लिए जो है तो जरूरी हो जाता? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ऐसा when there is a refracting system, isn't it? अंसारी? Yes, sir. Yes, sir. तो जब एक रिफ्रैक्टिंग सिस्टम रहती है जिसमें ऑब्जेक्ट, इमेज, लेंस वगैरह है, तब ये कार्डिनल पॉइंट्स आते, वजूद में आते, इनका जो है तो वजूद होता, इनका जन्म होता। तो ये जो नोडल पॉइंट्स है ये भी कब आ रहे हैं? कि when there is a refracting system, light is incident. So these 2 points are present on the principal axis of the optical system. These 2 points are conjugate to each other, and these 2 points are called as first. जब 2 है, जोड़ी है, तो first one is denoted by n1, another is denoted by n2. n1 is the first nodal point and n2 is the second nodal point. Now what is the first nodal point? कहाँ कैसा है? तो the first nodal point which is denoted by n1 is present कहाँ पर? In the image side
और इन Principal. ऑब्जेक्ट साइड एक साइड में रहेंगे ना वो, isn't it? And it is called as the first nodal point, and whereas its image, उसकी image, it is denoted by the symbol n2 and it is present toward the other side, that is called as the second nodal point. यानी कि और अगर इसको डेफिनेशन को इलैबोरेट करें तो यू कैन सी दैट द डेफिनेशन मींस दैट द रे ऑफ लाइट, और थोड़ा क्लियर करते हैं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि नोडल पॉइंट्स कैसे वजूद में आते हैं, तो बात ऐसी है कि ये नोडल पॉइंट एक्सिस पर दो पॉइंट का मजमुआ है जो एक दूसरे को कॉन्जुगेट है, और ये पॉइंट इस वजह से जन्म में आते हैं कि लाइट रे इन पॉइंट में से किसी एक के तरफ डायरेक्ट होती हो रही, क्या देखिए an1 अगर थोड़ी के लिए बोले तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, बराबर है? यस सर। ये दिस इज द इंसिडेंट रे, किधर डायरेक्टेड है, एक पॉइंट के ऊपर, कहां है वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पर। प्रिंसिपल एक्सिस पर। वो पॉइंट को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, n1 से। n1। अब ये जो इंसिडेंट रे है, अब इन्हें यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंस के बाद इसका क्या होता, इंसिडेंट रे जब लेंस में से पास होती तो क्या होता बाद में उसका, रिफ्रैक्शन होता। ये अब ये इंसिडेंट रे है, ये उसकी करस्पॉन्डिंग इमर्जेंट या रिफ्रैक्टेड रे है, समझ में आ रही बात आपके? तो देखिए इंसिडेंट रे कहां पे जाके मिल रही, किधर से किधर जाती दिख रही, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस को तो जा रही, लेकिन कौन से पॉइंट पे जा रही, n1 पॉइंट पर, n1 पे जा रही। यानी कि इंसिडेंट रे इज अपीयर टू डायरेक्टेड टुवर्ड्स द n1 पॉइंट व्हिच इज द फर्स्ट नोडल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्शन के बाद इसी an1 की रिफ्रैक्टेड रे कहां से निकलते दिख रही, n2 से। और ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, पैरेलल है। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि दो ऐसे पॉइंट का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मजमुआ, ऐसा मजमुआ जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही और रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे पॉइंट से निकल रही, यानी कि ऑब्जेक्ट के तरफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही और इमेज से रिफ्रैक्टेड रे निकल रही। The definition means that the ray of light is directed towards one of these points in parallel direction. After refraction, it appears to come from the second point. समझ में आ रही बात? फिर एक बार सुन लीजिए। Yes sir. This definition means that ray of light is directed towards one of these points. है क्या? Directed towards of this point and starts from, या appears to start. Start भी मत बोलिए बल्कि ऐसा लगता है कि कहां से निकली, appears to start from the second point on the axis and this emergent ray is parallel to the incident ray. तो इस तरह के जो दो पॉइंट जो एक्सिस के ऊपर पाए जाते, ये दो पॉइंट्स क्या कहलाते, प्लीज, नोडल पॉइंट। सो प्लेन, अब समझ में आ गया आपको कैसे डिनोट करें हमने यहाँ पर नोडल पॉइंट n1 एंड n2 से। अब अगर एक लाइन अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जो किसको कहां से पास होंगी, n1 में से, इफ आई ड्रॉ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू n1 एंड पासिंग थ्रू n1, देन दैट प्लेन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट नोडल प्लेन। एम आई करेक्ट? अगर यहां से मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो n1 में से पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर हो, वो प्लेन क्या नाम से पुकारी जाएगी, द प्लेन पासिंग थ्रू द फर्स्ट नोडल पॉइंट इज कॉल्ड एज फर्स्ट, बोलिए, फर्स्ट नोडल प्लेन। यस, और एक अनदर प्लेन में ड्रॉ करूं जो कि कहां से पास होगी, समझो n2 से, तो दैट प्लेन इज कॉल्ड एज सेकंड नोडल पॉइंट। प्लेन इज कॉल्ड एज द नोडल प्लेन और पॉइंट इज कॉल्ड एज द नोडल पॉइंट। यानी कि n1 और n2 को क्या नाम से पुकारना आपने, फर्स्ट और सेकंड नोडल पॉइंट। और प्लेन किसको बोलेंगे आप, जब मैं समझो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा जो कि कहां से पास हो रही, n1 में से, प्लेन ड्रॉ कर रहा जो कहां से पास हो रही, n2 में से। तो ये दो प्लेन को हम क्या नाम से पुकारेंगे, ये प्लेन क्या करेंगी, कहां से पास हो रही इन्हें, फर्स्ट नोडल पॉइंट से। तो ये प्लेन क्या नाम से पुकारी जाएंगी, फर्स्ट नोडल पॉइंट, नोडल प्लेन। और इन्हें क्या कह लेंगी, ये प्लेन
सेकंड nodal plane. समझ में आ गई बात आपके? ऑल ऑफ यू हैव Yes. गॉट Yes. तो कितने जो है तो अपने को पॉइंट्स मिल गए अब 6 points. 6 पॉइंट 6 points. F1 कैपिटल F2 फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट, कैपिटल P1 कैपिटल P2 फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, इजंट इट? और N1 N2 फर्स्ट एंड सेकंड Nodal point. नोडल पॉइंट। लेकिन और इसका थोड़ा मैथमेटिकल देखते हैं, मैंने जो बोला ना यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन, आप ये फिगर को देखिए और यहाँ पर फिगर को क्लियर करते हैं दूसरे हिस्से में। देखिए यहाँ पर हमने सभी पॉइंट का जायजा लिया। ये भी रिफ्रैक्टिंग सिस्टम है या ऑप्टिकल सिस्टम है, मानते आप? आर यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट दैट दिस इज द ऑप्टिकल Yes, sir. सिस्टम? Yes, sir. Yes. Now let us consider that AF1 and BF2 are respective क्या है जी नो? F1 क्या है मुझे आप एक बार बोल दीजिए। F1 F2 क्या है? फोकल पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट। P1 P2 क्या है यहाँ के? सॉरी H1 H2 क्या है? Prince. हाँ सही बोल रहे फायदा। H1 H2 यहाँ P1 के बजाय H2 नाम दिए। H1 H2 Principal point. प्रिंसिपल पॉइंट एंड N1 N2 Nodal point. फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट। ठीक है, चलिए अब इसको और थोड़ा सा आसान, वही बात है, थोड़ा इजी में समझने की कोशिश करें। लेट अस कंसीडर दैट AF1 एंड BF2 क्या है जी दोनों? ये AF1 क्या है? प्लेन है, कहां से पास हो रही? Principal axis. ये focal point. कौन सी प्लेन बोलना है इसको मैंने? फर्स्ट फोकल प्लेन, First focal. सेकंड फोकल प्लेन, बराबर है क्या? तो लेट Yes, अस sir. consider that AF1 and BF1 are the respective focal planes, बराबर है क्या? respective focal plane बोले तो first focal plane and second focal plane. Are you agree with my statement? यस Yes, sir. Capital F1 and capital F2 are the first focal point and second focal point respectively. Are you agree? Now consider a point A in the first focal plane at the height of H from the principal axis. First ये point A किसके ऊपर से पास हो रहा? किसका पॉइंट है इन्हें? हकीकत में इसका महल वकू, इसकी जगह का ही किसका हिस्सा है इन्हें? First focal point का. फर्स्ट फोकल प्लेन का हिस्सा है ना इन्हें, पॉइंट ए। और प्रिंसिपल Yes, sir. कितनी दूरी पे है? मिसाल के तौर पे फर्ज करो कि H है, फर्ज कीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, फर्ज कीजिए कि ये डिस्टेंस कितना है? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? सपोज H. आर यू एग्री? Yes, sir. यस Yes. So let us consider that there is a point on the first focal plane which is at a distance of H from the principal axis. Now let us consider a ray AS1. है क्या? दिख रही क्या ये रे? AS1 है क्या? रे AS1 रे है, Yes, sir. Yes, sir. A से निकल रही। ये रे AS1 फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन को कहां पे खता कर रही है आके? Yes, one point पर. S1 पॉइंट पर। तो let us consider a ray AS1 which is intersecting the first principal plane H1 P1 at point S1, बराबर है क्या? Such that इसके इंटरसेक्ट करने की वजह से क्या हुआ? Such that its conjugate emergent ray proceed from the point S2, proceed from the point S2 जो कि किसके ऊपर है? On the second principal plane, such that now the triangle is formed. हो गया ट्रायंगल फॉर्म? यहाँ पे अब क्या ट्रायंगल बना? H1 N1 S1 दिख रहा है ट्रायंगल एक? Yes, sir. Yes. ट्रायंगल क्या बना? H2 N2 S2, S2. ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। और अगर आप देखें तो ये जितना एंगल है उतना एंगल ये है। जब एंगल बराबर है, साइड बराबर है, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा जी P1 S1 is equals to P2 S2? Yes, sir. ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बने तो P1 S1 is equals to P2 S2, Yes, 2. isn't it? अब अगर ये ऐसा है
तो क्या ये बोले कि हम कि रे यस टू टी इंटरसेक्ट द सेकंड प्रिंसिपल प्लेन या सेकंड प्रिंसिपल फोकल प्लेन एट BF2, इसकी इमर्जेंट रे यहाँ पे इन टी, देयरफॉर रे AS1 ये क्या हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और इसकी इमर्जेंट रे कहां से निकली S2T, इंटरसेक्ट एट पॉइंट कहां पे N1 एंड N2। इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी देख लिए और देख लीजिए, देखिए थोड़ी देख लिए, फर्ज करोगे यहां से आधा आधा कर दिया मैंने समझने के वास्ते। तो क्या लगता जी है, ऐसा लगता है कि इधर के सब कौन है ऑब्जेक्ट। ए अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां है इधर B F1 अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां है इधर F2 H1 अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां है इधर, यानी ये दो आधे दिखते, इधर जो इधर ही सब वो है क्या नहीं। तो इसका मतलब, और फिर यहाँ पर ये ट्रायंगल भी फॉर्म हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ओवरऑल अगर अब आप देखें तो एंगल AN1F है क्या, AN1F बना क्या ट्रायंगल AN1F1, कितना जाविया है ये सब जो α1, एंड इट इज लेस देन S2N2P2 है क्या, isn't it? It is α2 and therefore ये जितना जाविया उतना जाविया है, तो α1 डिवाइडेड बाय α2 कितना होना, अगर ये दोनों ये जिला बराबर है, ये जिला बराबर है, तो एंगल क्या होता है उनका रेशियो 1। यानी कि α2 अपॉन α1 इज इक्वल टू 1। अगर α1 अपॉन α2 यानी कि जो ट्रायंगल यहाँ जो फॉर्म हुआ ये अगर बराबर है, इसका ये मतलब हुआ कि N1 किसके बराबर है N2 के। जब ये जाविया बराबर है N1 और N2 बराबर है, इसी को बोलते हैं कि ये दोनों, और N1 N2 कौन है, क्या नाम से पुकारे इनको अपन ने अभी, nodal point Nodal points. Nodal points, they have unit angular magnification। बोले थे ना उनको अपन ने डेफिनेशन देते वक्त कि पेयर कॉन्जुगेट किसको बोलते, बोले थे कि भाई एक दूसरे के पॉजिटिव निगेटिव में है, एक जैसे है चलो मान लिए, लेकिन यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, इसका मतलब कि they form the angle which they form with the different axes, that is H1 N1 S1 H2 N2 S2, it is equals to same, यानी कि α2 divided by α1 is equals to 1, means these two nodal points which are present on the opposite side of each other on the principal axis have the unit angular magnification। समझ में आ रही है बात आपके, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती क्योंकि ये थियोरेटिकल है, आंख से दिख रहा नहीं आपने, समझ में आ रही बात, एक से दो मर्तबा yes sir चलें और इसको क्लियर देखने की कोशिश करते हैं। नाउ कंसीडर अनदर रे AP1, दिख रहा है क्या AP1 है क्या, पैरेलल टू एक्सिस मीटिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन एट P1 है क्या, लेट F1A, कहां F1A है क्या, इज इक्वल टू P1 H1 है क्या, सबकी हाइट उतनी है नहीं, यहां नहीं दिख रहा क्या, बड़ा करोगे इसको, पीछे जाऊं क्या, ये देखो F1A पैरेलल टू H1 P1 H1 सेम हाइट पर है H, तो इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू H, और इसकी और ये दोनों की कॉन्जुगेट इमर्जेंट रे कहां से पास होती हुई दिखेगी आपको, फ्रॉम पॉइंट P2 in the second principal plane such that P1 H1 it is exactly equal to P1 H1, क्या है ये, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन किसके बराबर है, किस उसकी इमर्जेंट रे क्या है, ये अगर इंसिडेंट रे है तो इसकी इमर्जेंट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज क्या है दिखने के हिसाब से P1 P2 P1 पर एक प्लेन है क्या नहीं, मैंने ऐसा बताया ना आपको अभी ड्रॉ करके कि भाई ऐसा आधा कर दी, तो P1 H1 क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन,
इन्हें रिफ्रैक्ट होके क्या बन रही है, इसकी इमेज क्या बना रही है, इमेज नहीं है लेकिन यहाँ समझ P2H2 तो क्या हुआ है P2H2, ये P1 इमेज इमेज हो गई किसकी, थोड़ी देर के लिए P1H1 की। P1H1 क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन फर्स्ट प्रिंसिपल कौन से साइड में है, ऑब्जेक्ट साइड में, ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज कौन से साइड में मिल रही, इमेज साइड में इमेज साइड क्या नाम से जानी जा रही, P2H2। H2। आ गया समझ में, फर्स्ट फोकल प्लेन Yes, sir. AF1 उसकी करस्पॉन्डिंग इमर्जेंट रे BF2, से फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन AH1 उसकी करस्पॉन्डिंग इमर्जेंट रे P2H2। सारी बात समझ में आपके, आर यू गेटिंग प्लीज? यस सर। चलिए, तो ये अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 आ गया, इसका क्या मतलब पकड़ लिया आप कि नूडल पॉइंट्स कैसे हैं, कैसा रखते हैं, एंगल बराबर आना इस बात की निशानदेही करता है कि नूडल पॉइंट को आपने क्या नाम से पुकारना, यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन रखते बोल के, बराबर है। तो वो हिसाब से अगर देखें तो P1H1 इज इक्वल टू P2H2 इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल h। उसी तरह ये दोनों पास हो रहे F2 में से, F2 जो है वो F2 P2 F2 का P2 F2, देखिए P2 F2 इट इज पैरेलल टू S2 N2, ये जो T तक जा रही, तो thus we can say that अगर आप ट्रायंगल S1 H1 N1 दिख रहा आपको, ट्रायंगल S1 H1 N1 दिखा क्या, यस दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, S2N2H2। देखिए ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो जाविये क्या है उनके, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। लेकिन साइड H1 S1 ये दोनों उतनी उत्तीच है, दिख रही है फिगर में, हाइट उत्तीच है कि नहीं, दोनों जिले की है, जिला बोलते ना यस सर। यस S1 इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू S2 H2 S2, दोनों जिले बराबर है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, H1 N1 शुड बी इक्वल टू H2 N2। क्यों, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना S1 H1 N1 और S2 H2 N2 दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है, ये कांगुरेंट, कांगुरेंट किसको बोलते हैं, मैथ वाले मालूम होंगे, अंसारी। और एक बार फिर मैथ के टीचर से पूछ लेना, सिमिलर एंगल को बोलते हैं congruent। हाँ, तो जब ये दोनों कांगुलर है, साइड उनकी बराबर है, तो उनके जाविये क्या होंगे जी, फिर सिमिलर रहेंगे, बराबर होंगे। सेम वो जब दोनों कांगुरेंट है तो अब हम क्या करते हैं, N1 H2 ऐड ऑन बोथ साइड, ये जो ऊपर की इक्वेशन है ना अपनी, ये H1 N1 इज इक्वल टू H2 N2, इसमें क्या ऐड करते हैं हम, अब N1 H2 ऐड करते हैं मैथमेटिकली, ये समझ में आ गया तुम्हारे, H1 N1 इज इक्वल टू H2 N2। यस सर। इसमें अब आपको मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, N1 H2 ऐड करेंगे, करे H1 N1 था उसमें क्या ऐड कर दिए, N1 H2, वैसे राइट हैंड साइड में N1 H2 में फिर ये ऐड करें, क्या मिलेगा यहाँ से अगर हम इसको देखें तो H1 N2 इज इक्वल टू H1 N2, ये दोनों का इस तरह से आना किस बात को जाहिर करेगा कि हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल थे AF1 N1, कहीं AF1 N1 है क्या, AF1 N1, और दूसरा कौन सा है P2H2 F2 है क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि AF1 इज इक्वल टू P2H2, AF1 है क्या इज इक्वल टू P2H2, ये जितना जिला है उतना जिला ये भी है, और वो जाविया कितना है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। इसका क्या मतलब हो गया कि अब ये ट्रायंगल में अगर हम बात करें AF1 N1 है क्या, AF1 N1, उसकी तरह दूसरा ट्रायंगल क्या है P2 N1 F2, ये दोनों में ये जिले बराबर हुए कि नहीं, F1 N1 इज इक्वल टू H2 F2, H2 F2 क्या है, मगर H2 F2 क्या है, F2 क्या था, फोकल पॉइंट। सेकंड फोकल पॉइंट। तो फिर यहाँ से यहाँ तक का फासले को क्या बोलते हैं अपन, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल प्लेन, फोकल लेंथ कैसे डिनोट करना, F2 है बोल के F2, तो H2 F2 इज इक्वल टू क्या, F2 यानी कि सेकंड फोकल लेंथ। उसी तरह F1 N1
इमेजिनरी अंदाज में F1। तो लिहाजा P2N2 फिगर देखिए आप, P2N2 इज इक्वल टू H1 F1 इज इक्वल टू F1, F1 N1 इज इक्वल टू H2 F2। लिहाजा ओवरऑल पूरी अगर हम बात करें और उसको सॉल्व करते रहें तो हम क्या देखते हैं कि H1 N1 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। लिहाजा ओवरऑल अगर आप देखें तो H2 N2 H1 N1 F1 F2 ऑल दिस पॉइंट्स आर सेम। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि H1 P1 इज इक्वल टू H2 P2, AF1 इज इक्वल टू BF2, सब बराबर हुए कि नहीं पूरे पॉइंट से, और सबके सब कहीं एक ही मीडियम में है, एंड बोथ आर लाइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, इजंट इट। तो इसका ये मतलब हो गया कि H1 N1 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी कि टोटल फोकल लेंथ, इजंट इट। और इसका ये मतलब हो गया कि 6 के 6 पॉइंट कहीं, अभी कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 और ये 5 और 6। तो ये 6 के 6 पॉइंट कहां पे रहते, प्रिंसिपल एक्सिस पे रहते। सबकी हाइट कितनी रहती, AF1। अच्छा लेंस किसकी बात करें हम, प्लेन्स की, तो AF1 इज इक्वल टू BF2 H1 P1 इज इक्वल टू H2 P2 H1 ये N2 H1 N1 is equal to H2 N2 and these are right angle triangles and therefore H1 P1 is यानी कि जितना ये भाव्य है उतना चाहिए है, यानी कि अगर हमने P1 भी निकाल दिए तो इसका ये मतलब होता कि वो फासला हमने N1 निकाल लिए। तो ऐसे सिस्टम में जहां पर ये एक दूसरे को कोइंसाइड है, थोड़ी देर के लिए अगर लेंस अगर एक दूसरे को कोई साइड है तो जहां पर प्रिंसिपल पॉइंट रहेगा वहां पे कौन रहेगा, पॉइंट, नोडल पॉइंट, क्योंकि बोथ आर H1 N1 इज इक्वल टू H2 N2। चलो आगे चलिए, और एक टर्म आपको हमको बताना है, पावर। किसको बोलेंगे जी, पावर ऑफ द लेंस। अपनी पूरा डिस्कशन किसका चल रहा, जब से चैप्टर शुरू करे, जब से किसकी बात करते हैं अपन, लेंस की। लेंस रिफ्रैक्ट करती, लेंस इमेज फॉर्म करती, लेंस इमेज अच्छी आना बुरी आना सब वो बात करते। अच्छा मुझे ये बोलिए कि हर लेंस की पावर फोकल लेंथ सेम रहती क्या, नहीं सर, फिर हर लेंस की जब फोकल लेंथ अलग अलग रहेंगी तो उनका पावर भी अलग अलग रहेगा कि सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब आप मुझे ये बोलिए कि पावर बोलना किसको, लेंस का। फिजिक्स में लैंग्वेज डेफिनेशन तो सामने है, लेकिन आप उसमें अपन बोलते ना बहुत पावरफुल कैमरा है उसका, एक लफ्ज अपने जनरली बोलने में आता ना, आपने सुने होंगे आपने, भाग्यश्री वाले का, भाग्यदेव वाले का कैमरा बहुत पावरफुल है बनिस्बत अप्सरा फोटो स्टूडियो वाले से। क्या मतलब, क्लियरिटी उसका पावर है। पावर मुराद क्या है यहाँ, अब हाँ फिजिक्स के लैंग्वेज में हम पावर किसको बोलेंगे, द पावर ऑफ द लेंस इज द इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कन्वर्जेंस ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में पावर बोले तो क्या, उस लेंस की वो काबिलियत जिसके तहत उन्हें क्या करता, लाइट को कन्वर्ट करता, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ट करके इमेज बनाने की उसकी पावर, उसकी सलाहियत क्या कहलाती, क्या नाम से पुकारना उसको, बोलो बेटा, फैजा, सना, द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फार्मूला और भी क्या है हमारे पास, और पावर और फोकल लेंथ ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। और एक बात याद रखिए, आपको बोले फोकल लेंथ अगर आपको बोले F1 है तो आप पावर कैसे निकालेंगे, P1 1 अपॉन F1 फोकल लेंथ। तो याद रखिए, आपको डेफिनेशन हम बता दे रहे कि मैथमेटिकली the power is reciprocal of the focal length, therefore power suppose it is denoted by P, it is equal to 1 upon focal length in meter। और एक यूनिट है पावर की, डेप्टॉर्स, सेंटीमीटर में रहता 1 अपॉन सेंटीमीटर, लेकिन उसकी और अच्छी यूनिट कौन सी है, डेबिटॉर्स डी। समझ में आ रही बात, ये हम आपको बताना चाह रहे थे। फोकल लेंथ का फार्मूला अगर ये है 1 अपॉन F, फोकल लेंथ का फार्मूला पढ़े ना अपन ने,
1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. क्या मतलब? Focal length of the combination of the lengths is focal length of first length plus focal length of second length minus दोनों का distance. तो ये फोकल लेंथ का अगर ये फार्मूला है और उसको पावर के फार्मूले में बना बोले तो कैसा बनेंगे? जब 1/f बोले तो P, इधर देखो सब अनम्यूट करके, बराबर बोल रहा हूँ क्या? फैजा, सना, साथ, Yes. Yes, sir. 1/f का क्या आएगा? P, क्योंकि अभी बोले ना P is equal to 1/f. The focal length of combination is this one. So P is equal to P1 plus P2 minus D P1 P2. So this is the equivalent power. तो आपको कम से कम यहाँ से इतना समझ में आएगा कि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. Yes, sir. Yes, sir. चले आगे. Yes, sir. प्रिंसिपल प्लेन्स आपको बता दिया थोड़ी देर पहले. अगर बताया ना इससे पहले कि कॉम्बिनेशन है, तो अगर आपको अगर बोले कि प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल पॉइंट बताओ, तो आप बता सकते हैं कि इस तरह का सेकंड प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द लेंस, इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या है सेकंड प्लेन? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इमर्जेंट रे. इट इज कॉल्ड एज द सेकंड. इससे पहले बता दिया ना, वही है ये. फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन किसको बोलते हैं आप? कौन से साइड में रहती? Object side में. क्या है इन्हें? It is the locus of point of intersection of the incident ray through the first principal focus in the object space and its conjugate emergent ray in the image space. अपन बोले ना, पढ़ के आए ना फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, वो बताया ना ये पूरे चीजें. देखिए ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से इसकी कॉन्जुगेट रे है, ये आगे आए, इसको और इसको दोनों को करे तो इन्हें कहाँ एक दूसरे को मुड़खता करते? P2 पे. यहाँ से जो प्लेन पास होती पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, उसको क्या बोलते हैं आप? सेकंड प्रिंसिपल प्लेन. फिर वैसे ये बताया था उस दिन, थोड़ा याद करना, उस दिन का लेक्चर देख लेना बेटा. तो वो बता रहे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन को अगर आप डेफिनेशन दो बोले तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, इट इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट साइड एंड इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड इट्स कॉन्जुगेट इमर्जेंट रे इन द इमेज स्पेस व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस. उसी तरह सेकंड को क्या बोलेंगे आप? अगर फिगर के हिसाब से देखें तो it is seen from the figure that any incident ray, चाहे वो AB हो, directed towards the first principal plane या first principal point appears to come from the second point. दिख रहा है कैसा? ये इंसिडेंट रे अगर इसके तरफ जा रही तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होते निकलते दिख रही? वो रिफ्रैक्शन से पहले किधर जाती दिख रही? P1 को. P1 के बाद कहां से निकलती दिख रही? P2. तो इसको ऐसा बोल सकते कि आप, इट इज सीन फ्रॉम द फिगर दैट द इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1 एंड अपीयर्स टू कम, यानी लगती है, आती नहीं वहां से लेकिन ऐसी लगती है, टू कम फ्रॉम द सेकंड पॉइंट P2. देयरफॉर P2 इज द इमेज ऑफ, P2 किसकी इमेज हुई? P1. P1 की. P1 ऑब्जेक्ट, P2 इमेज, सब कॉन्जुगेट दिखते ना. उसी तरह H1 P1 अगर फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन हुई तो इसकी कॉन्जुगेट इमर्जेंट प्लेन कौन सी हुई? H2 P2. लिहाजा ये दोनों हाइट में उतने उतने है नहीं? Yes. तो फिर ऐसा बोल सकते क्या? हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H2 अपॉन P2 डिवाइडेड बाय H1 P1 इज इक्वल्स टू 1. क्योंकि दोनों की हाइट उतनी उतनी है. चलिए प्रॉपर्टीज अगर बोले प्लेन्स के तो क्या बोलेंगे आप? सबके सब प्लेन्स कैसे हैं? Conjugate. Conjugate. सबका यूनिट लेटरल मैग्निफिकेशन है. सेकंड क्या प्रॉपर्टी है कि फॉर एनी इंसिडेंट रे इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन एट ए गिवन डिस्टेंस एंड इट्स कॉन्जुगेट इमर्जेंट रे इंटरसेक्ट द सेकंड प्रिंस, यानी कि एक इंसिडेंट रे अगर फर्स्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो उसकी कॉन्जुगेट रे उसके इमेज को इंसिडेंट इंटरसेक्ट करती. मतलब पहले अगर इंसिडेंट रे अगर पहले की तरफ जाती हुई दिख रही तो इमर्जेंट रे दूसरे से निकलती हुई दिख रही. वो बात है यहाँ पे. उसी तरह डिस्टेंस H1 F1 रिप्रेजेंट द फर्स्ट फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय F1. तो उसी तरह उसका डिस्टेंस H2 F2
वो क्या डिनोट करेगा? सेकंड फोकल लेंथ। अगर पहला डिस्टेंस अगर h1 f1 अगर ये फर्स्ट फोकल लेंथ डिनोट करता होगा तो h1 f2 का जो h1 f1 का जो इमेज है क्या है उसकी इमेज? H2 F2 ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी? second focal length f small f yeah, F2. So with this one we shall stop here today. If you want to ask any question please ask me. Still 2 minutes are there. थोड़ा सा टफ जाता है लेकिन समझिएगा इसको। लेक्चर में अभी वीडियो यूट्यूब पर भी डालूंगा, जाइए लाइक कीजिए, सुनिए, 1 से 4 मर्तबा नहीं समझा पूछिए। और भी अगर यूट्यूब पर दूसरे भी आपको इस तरह के इसके ऊपर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब, वो भी देखिए। फीस भर दिए सबने? डेट कब तक है सर उसकी?